السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعے کے دن مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو بات اب آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی اور سمجھانے کی، پھر ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے داؤد علیہ السلام کا بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر شروع فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا، اور کئی سورتوں میں ان کا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹا ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات بھی ہمیں دیکھ چکے ہیں، ایسا چاہیے اب سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنایا اور ان کو بادشاہت دی، جیسا داؤد علیہ السلام کو دیا تھا ویسا ہی بادشاہت دی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، اور پرندوں کی بولنی سکھایا۔ پرندے جو بات کرتے ہیں، چڑیا، تو پورے ان کی بولنی سکھایا اللہ تعالیٰ، اس کا بات کو سمجھنا اور اس سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ پورے جانوروں کے اوپر ان کا حکومت ہے، پورے جانوروں کے اوپر ان کا حکومت ہے، اور بادشاہت بولے تو پوری انسانیت کے اوپر بھی ان کی حکومت ہے۔ ادھر انسانیت کے اوپر ان کا حکم ہے، ادھر جانوروں کے اوپر ہے، سمندر کے اندر ہے سو مخلوق کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، اتنے بڑے بادشاہ۔ اور ان کے کنٹرول میں جنات ہے، جنات سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے اوپر بھی حکم کرتے تھے، حکومت چلاتے تھے، اپنا حکومت۔ سلیمان علیہ السلام اتنے طاقتور نبی سلیمان علیہ السلام، اور ہوے کو اللہ تعالیٰ ان کے تابع کر دیا۔ ہوا میں کیسا جانا گئے تو ویسا ہوے میں چلے جاتے، سو سیکنڈوں میں، کچھ سیکنڈوں میں اتنا لمبا سفر ہے، مہینے ہونے کا سفر میں سیکنڈ سا میں دنا میں کرواتے سو، کیسا ہوے کو حکم دیتے سو فلانا جگہ پہ چل مجھے کو ہوا چلے پہ چلے جاتا سو سلیمان علیہ السلام کو۔ کہا تو ہوا تیز ہوا آتا ہے تو سلیمان علیہ السلام حکم دیے تو وہ ہوا رک جاتا سو۔ ایسی حکومت، ایسے معجزہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا، یا سلیمان علیہ السلام کو ایک سمندر، تانبے کا سمندر چلا ڈالا، تانبے کا نہر، راگی بولتے ہیں ہمیں اسے، جسے راگی تانبا، اس کا نہر چلا دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ۔ اتنے بڑے پیغمبر، پورے اس کے اوپر انہاں کا حکومت ہے، بادشاہت ہے، اتنے بڑے پیغمبر، انہاں کو یہ پورا اس لیے ملا کہ انہوں نے دعا کرے اللہ سے، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو بھی نہیں ملنا، منجج ملنا، میرے بعد میرے جو تک کسی بھی ملے جا بھی نہیں، میرے سے زیادہ بھی کسی بھی ملے جا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام سے پہلے اتنی بڑی حکومت کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ ایسی حکومت، اکیلا بادشاہ۔ جناتا انہاں کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام دیکھو، کانپتے سو ڈرتے سو جناتا بھی،
जिन्नाता को इन्हों सुलेमान अलैहिस्सलाम सजा भी देते सो, इन्हें बोले सो काम नहीं सुने तो वो लगा दर्जा दे सो सुलेमान अलैहिस्सलाम सी जिन्नाता सी कामा कराते सो, बड़े बड़े इमारत करना, बड़े बड़े घरा बनाना, ये पूरे, और जो समुंदर में जो तांबा और हीरे सोना रहता ना, वो पूरे जिन्नाता को हुक्म दे को ले लेगा, चुन को ले लेगा आते सो जिन्नाता, हीरे को सोने को समुद्र में रहता सो, वो पूरा जिन्नात से काम लेते सो सुलेमान अलैहिस्सलाम। इतने बड़े पावरफुल आदमी, इतने बड़े पावरा दिया अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटा है। इतने मौजिज़े दिए अल्लाह ताला उनको, ये उनके मौजिज़ात। सुलेमान अलैहिस्सलाम में जवानी मोहेशम को दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 वाक़यात हुए, जिससे सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना ज़हीन की मालूम होता, कितना समझदार की उन्हें मालूम होता। पहला वाक़या जो मैं आपके सामने बयान करूंगा वो है कि 2 आदमी है, एक का जंगल है, वो जंगल के आसपास में एक उसका घर है, उसका ना वो बकरिया है। उन रोज सो जाते सामने बकरिया को, जो बकरिया का अंदर बकरिया के रखने का जगह रहता उसमें रख को दरवाजा डाल डालता सो। कई को कहते तो वो दरवाजा नहीं डाले तो वह पीछे हाथ एक जंगल है उसमें चले जाओ, वो खेती खराब कर डालते ना बकरिया जाको, वैसा करता सो। एक बार ऐसा हुआ कि उन वो बंद करना भूल गया, बंद करना, जिससे उसका फसल खराब हो गया, उसका खेती खराब हो गया। उन्हें आको सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तक नहीं हुए है, अभी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आको दरबार में बोले ऐसे ऐसा हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ। वो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या बोलते गए तो इसके बकरा तू काट ले, वो जुल्म हुआ तेरे ऊपर है, इसका क्या क्या है तो बकरा है कि ये बकरा तू काट ले को बोल को वो खेती वाले को बोले दाऊद अलैहिस्सलाम। बाद में लगा वो फैसला हो जाने के बाद ये बाहर जाते हैं तो बाहर सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी अंदर आते रहते, इना का मुलाकात होता, पूछते सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते, सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोग बोलते ऐसे ऐसा हुआ हमारे साथ को बोल को दोनों के अंदर ले लेगा को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत लेते, परमिशन लेते, मुझे जरा इजाजत दियो मैं इसका फैसला करता हूँ। बोल को फैसला यह करते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो खेती वाला है ना उसे बकरा दियो, परमानेंट होने नहीं टेम्पररी होने उसे दियो बकरा, और जो असल बकरा वाला है उसे क्या हुक्म दिएगा कहे तो खेती को होगा। इससे पहले कैसा रहा कि इन्हें कितना मेहनत कर को इन्हें खेती उगा लिया कि वो पूरा तो करे, मजदूरी करे कर को कब है तो खेती मामूल होने आ जाती कि इन कौन सा हालत में है तो रखे कि वो हालत में कब है तो आ जाती कि जब इसके बकरे इसे दे डाल को उसका खेत उसे वापस दे डाले तो अच्छा रहता। जिससे इससे क्या होता, इधर बकरिया वाला भी असली से महरूम होता नहीं, बकरिया सी टेम्पररी होने इसका नहीं चल जाता, लेकिन बाद में इसका कहा जाता है ना बकरा, इन इससे महरूम नहीं होता बकरिया सी। और जो खेती वाला है उन्हें बकरिया की दूध के वजह से बिजनेस कर को फायदा उठाता, जिससे उसका नुकसान क्या भी नहीं होता, दोनों का नुकसान पूरा होता, दोनों को भी ये अच्छा फैसला को बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसला करते। ये फैसला अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये फैसला हम सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम समझाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये फैसला कौन समझाए? अल्लाह समझाया। ये बेहतर फैसला को बोल को और फैसला वो करे सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले ना। और दूसरा वाक्य और एक है कि 2 औरत है, एक बड़ी औरत उम्र में, एक छोटी औरत। उसके अल्लाह ताला ने वो दोनों की एक एक बच्चा दिया, दोनों को। बड़ी औरत का बच्चा है उसे भेड़िया रहता ना, वो भेड़िया खा लेता। वो औरत क्या करती, बहुत चालाक है, छोटी औरत है ना, उसका बच्चे को ले लेते मेरा बच्चा कहती। ये फैसला दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में गया, इसके बारे में फैसला करना हो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने की जो बड़ी औरत है उसके हक में फैसला देते दाऊद अलैहिस्सलाम, इसके हाथ में है इसका बेटा को बोल को। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर को इजाजत लेते अब्बा से, अब्बा मुझे इजाजत दियो मैं इसका फैसला करता हूँ बोल को, इजाजत दे दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको दरबार में बच्चे को इधर दिया वो बोल को बच्चे को ले लेते को सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते कि
ये बच्चे को मैं दो टुकड़े करवाता हूं, दो टुकड़े करवाता हूं, दो आधे करवाता हूं, एक आधा एक उसे देता हूं, हबेक आधा हबेक उसे देता हूं। जो बड़ी औरत है ना उन अच्छा को वो बोलती, जो छोटी औरत है असल इस बच्चे की माँ है, वो बोलती कि ममता की वजह से, प्यार और मोहब्बत की वजह से वो बोलती कि नको मेरे बच्चों को ऐसा करना, नको मुझे नको लो, वो बच्ची उसे दे डालो, औरत को दे डालो को बोलती, जिससे सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठते तू है असल माँ, क्योंकि अपने बेटा अपना मासूम बच्चे का जो कत्ल का है इरादा उसको कबूल नहीं कर सकी, क्योंकि अपनी मनमता अपनी मोहब्बत प्यार की वजह से तू कबूल नहीं करी, तू है असल माँ को बोल को फैसला कर को वो बच्चे को दे डालते, छोटी औरत को दे डालते, ये ऐसा फैसला करे। इतना ज़हीन सुलेमान अलैहिस्सलाम, इतना समझदार उन सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने के बाद उनकी हुकूमत है सुलेमान अलैहिस्सलाम को आई, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटा सुलेमान को वो हुकूमत मिली। अब ये हुकूमत मिलने के बाद सूरे नमल में अल्लाह ताला दो वाक्य जिक्र फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, एक है चिमटी का वाक्य, चुमटी का वाक्य, दूसरा मलिका सबा का वाक्य। पहले चिमटी का वाक्य देखेंगे। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी फौज को तैयार करे, बोला ना इनकी फौज में परिंदे हैं, जिन्नात है, इंसान है, पूरे हैं इनकी फौज में, फौज को जमा करके एक जगह जाते हैं जंग के वास्ते। चिमटी की एक वादी रहती इलाका जो जंगलों में रहता हुआ, पूरे मच्छरा कीड़े उसमें, असल वो रास्ते से गुजरना कहते बहुत मुश्किल है, उतना डरावनी रहता वो चिमटी का वादी बोलते उसे, वो इलाके को। वहां जाते हैं तो वहां रास्ते में चिमटे रहते, उसमें एक चिमटी बोल उठती कि एक चिमटी हो तुम अपने दिलों में दाखिल हो जाओ, कहते अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और सुलेमान का लश्कर तुम ना कुचल को चले जाए और उनको पता भी ना चले। वो चिमटी बोली बात है, क्या कहो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनका लश्कर आता है, तुम्हें लगा तुम्हारे घरों में घुस जाओ, नहीं करते तो उन्हें तुम ना लगा को खंदल को चले जाते, उनको पता भी नहीं चलता सुलेमान को, तुम ना खंदले सो भी को बोल को बोलती चिमटी, सब भी चुमटे को एक खिताब कर को, एक चिमटी। ये बात है सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन को जोर जोर से हंसने लग जाते सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि चिमटी का बात सुनते हैं बाबू न सुलेमान अलैहिस्सलाम में। अल्लाह ताला इना को हर एक जानवर का बोली सिखाया ना अल्लाह ताला इना को, एकदम हंस को खिलखिला को हंस पड़ते सुलेमान अलैहिस्सलाम। मैं कैसी कैसी बातें सुनता है, मैं चिमटी की बातें अल्लाह ताला मुझे सुनाता है को बोलकर अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करते सुलेमान अलैहिस्सलाम। इतने बड़े बादशाहों को, इतनी बड़ी हुकूमत इना की, इतने बड़े मौजूद इना का हाथ के ऊपर है, बावजूद इतने होने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा फौरन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाता है, अल्लाह ताला मुझे कैसे कैसे बातें मैं समझता हूं भी है, सुनाना नहीं मैं समझता हूं, उन क्या बोलती है कि भी अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र को बोलकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। उसके बाद बोले कि या अल्लाह मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, और जो तूने मेरे वालिदैन तो मेरे माँ बाप के ऊपर जो नेमता की है ना, उसका भी मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, पहले मैं मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के नेक बंदे जो है वो नेमत मिले को फौरन अल्लाह की शुक्रिया अदा करते, गरूरी में नहीं जाते, फकर में नहीं जाते, मस्ती में नहीं जाते, अल्लाह के बंदे फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर को ये मेरा क्या भी नहीं है, ये पूरा मेरा अल्लाह का, तो बोलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। और दूसरी बात अपनी वालिदैन को भी, अपनी माँ बाप का भी शरीक करे सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमारे माँ बाप के ऊपर जो नेमता मिले ऐसा है कि जो हमको भी वो नेमता मिले। अबे हमारे माँ बाप खुशी है तो हमें भी खुशी होते ना, उना की खुशी में हमारी खुशी, उना की दुख में हमारी दुख है। वैसा क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जो नेमता तू मेरे माँ बाप के ऊपर करे ना, वो नेमता का भी मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। पहले मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, बाद में मेरे माँ बाप के ऊपर तो क्या क्या है तो नेमता करे कि वो नेमतों के ऊपर भी मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। और दूसरी बात मुझे नेकी करने की तौफीक अता फरमा। मैं इतना हुकूमत है, ऐसा चुमटी के बातें सुनना, परिंदे के बातें सुनना, ये पूरे इसमें आ जाओ, को तकब्बुर में नहीं आना, गरूरी में नहीं आना, मस्ती में नहीं आना, मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए। असल मसला क्या हो, तू राजी होना अल्लाह, तू नाराज नहीं, तू राजी होना मुझसे, वो असल मसला मुझे। ये
पूरा उसमें पढ़ जाओ, तो मैं तकब्बुर में नहीं पढ़ना, गरूर में नहीं पढ़ना, मैं तू मुझे ऐसा अमल की तौफीक दे जिससे तू मुझसे खुश हो जाए, को बोल के मांगे। फिर को फौरन अब एक बात बोले, ये असल खानदानी बात। देखो आखिर में और एक बात बोले, क्या बोले? ये 3 बात बोलने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक बात बोले, क्या बोले? तेरे नेक बंदे, बहुत सारे नेक बंदे हैं तेरे, उसमें मुझे भी शामिल फरमाओ नेक बंदों में, को बोले। देखो कितने बड़े पैगंबर है, उनके हाथों में कितने मोजिजे दिए अल्लाह ताला, कितना हुकूमत है उनका, एक इंसानियत के ऊपर नहीं, जिन्नातों के ऊपर नहीं, जानवरों के ऊपर है, परिंदों के ऊपर है, हर एक के ऊपर इनकी हुकूमत है। इतने बड़े पैगंबर है। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम से अफजल पैगंबर कौन भी नहीं, उनसे अफजल, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उनकी दुआ कबूल करे। क्या को बोल के दुआ करे? मेरे बाद ऐसा हुकूमत किसी को भी नहीं मिलना, वैसा हुकूमत मुझे दे, अल्लाह को बोल के दुआ करे। वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करे ना। इतना बड़ा बादशाह हो को, इतना बड़े अफजल पैगंबर हो को भी वो टाइम पर देखो क्या कहते हैं कि मैं नेक नहीं, मेरा अमल ऐसा अमल नहीं है, मेरा अमल के बारे में तू फैसला करना के तो अमल को देखो, मैं करते से काम देखो, तू फैसला करना के तो मुझे अलग सी सजा देना, होने से मुझे ऐसा नहीं। तेरे बहुत सारे नेक बंदे हैं अल्लाह, उतने जनों नेक बंदे हैं तेरे, बहुत जनों, उसमें मैं नहीं है। तू अपनी रहमत से, मेरा अमल ऐसा काबिल नहीं है, मैं अमल ऐसा अमल करना नहीं है जिससे तू मुझे तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा, ये काबिल नहीं है, मेरा अमल इसका काबिल नहीं है। तू अपनी रहमत से तू मुझे, तेरे बहुत सारे नेक बंदे हैं ना, उना में छे, तेरी रहमत से तू मुझे शामिल फरमा को बोलते हैं। कौन है बात बोलते हैं? सो इतने बड़े बात कौन बोलते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर, एक नबी बोलते हैं ये बात। नबी गुनाह से पाक होते हैं, गुनाहों से मासूम होते हैं, उन्होंने ये बात बोलते हैं। आज हमें देखो, हमारे हाथ में जर्रा पैसा आया तो, माल दौलत आया तो, एक गाड़ी बंगला आया तो, कार आ गया तो, कैसी बातें करते देखो हमें। इतना बड़ा हुकूमत है बाउना का, एक बड़ा एक गवर्नमेंट है उनका, बड़ा एक रियासत है उनके पास, बादशाहत है उन्होंने, इतने बड़े वो जिन्नातों के ऊपर है, इंसानात के ऊपर है, क्या हो इधर समुंदर में है तो मखलूक के ऊपर है, परिंदों के ऊपर है, हर एक जानवर के ऊपर इनकी हुकूमत है। इतने बड़े पैगंबर हो को भी देखो कैसा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं नेक नहीं कहते हैं, पैगंबर हो को, नबी हो को, नबी गुनाह से मासूम होते हैं, गुनाह से पाक रहते, उन्होंने ऐसा बातें बोलते हैं। आज हमारा हाल देखो, हमारे पास ऐसा क्या भी नहीं, जर्रा माल आया तो बस गरूरी में फकर में चले जाओ को बोलते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने रहने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का और एक बड़ा वाक्य जो है, जो मलिका सबा का वाक्य, सबा का इलाका, सबा बोले तो इलाका, वाकी एक मलिका क्वीन है, रानी वाकी इलाके की, मलिका सबा, सबा का इलाका, सबा बोले तो वो कहा है? यमन में है, यमन की कंट्री में है वो इलाका। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम में पूरे अपनी दरबार में सो हर एक मखलूक को जमा करे तो उसमें हुदहुद नहीं रहता। हुदहुद बोले तो ये परिंदे को हुदहुद बोलते, इसे हुदहुद बोलते, ये हुदहुद गायब रहता। सुलेमान अलैहिस्सलाम देखो पूछते, मुझे क्या हो गया है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, क्या मुझे नहीं दिखता है या वो वाकई गायब है? सुलेमान अलैहिस्सलाम कंफ्यूजन में है, मुझे दिखना नहीं है, नहीं तो याज का तो हबी का तो भिक्को है हुदहुद है, ये परिंदा हबी का तो भिक्को है हुदहुद है, मुझे दिखना नहीं, क्या मुझे नहीं तो दिखना नहीं है, का तो दूसरे जगह भिक्को है, क्या वो बोल को। इससे मालूम होता है कि पैगंबर करे गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। गैब का इल्म जो अल्लाह के पास ही है, अल्लाह के सिवा किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। इससे ये एक मालूम होता है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, जब तहकीक करे तो मालूम हुआ सही भी ये हुदहुद नहीं है वाह को बोल को। अब ये नहीं है वो बोल मारे वस्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते कि ये हुदहुद है, अगर मजबूत दलील है, मजबूत प्रूफ है, नहीं लेकर आया तो मैं उसे जबा कर रहा हूं, मैं उसे खत्म कर रहा हूं, तो बोल को बोलते, सख्त अजाब दे तो मैं उसे को बोल को बोलते सुलेमान अलैहिस्सलाम। कई को कहते तो हुदहुद है, एक आर्मी, उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की आर्मी में हुदहुद है। कई को कहते तो इसमें परिंदे भी है, जानवरा भी है, जिन्नाता भी है, इंसान भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के आर्मी में से सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाजत के बगैर जाने का इजाजत वो लगा को नहीं है। मुझे पूछ को नहीं सरका उन कैसा गया, मुझे बोले नहीं सरका को बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम है। कई को कहते कब है तो भी
फलाना फलाना इलाके को जाको खबर लेकर आको बोल सकते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर जब कैसा इन हुदहुद गायब है तो कैसा होगा वो होने सी करेक्ट वजह लेकर आया तो करेक्ट प्रूफ ले लेकर आया तो मैं इसे क्या करता नहीं तो मैं इसे सख्त अजाब देता हूं या मैं इसे कत्ल करवाता हूं बोल के बोलते सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब इसके बाद ऐसा बात करते चलते एकदम से हुदहुद आ जाता, ये परिंदा जो है हुदहुद है वो हुदहुद आ जाता, आ जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बोलने लगता, ये सुलेमान तुम्हें पूरी इसके ऊपर मेरी हुकूमत है, पूरी दुनिया के ऊपर मेरी हुकूमत है, मैं अल्लाह की दीन को गालिब करता है वो बोल के समझते हैं ना तुम्हें, ऐसा नहीं है। वाये के मलिका है जो औरत है उसके पास एक मजबूत रियासत है, मजबूत एक गवर्नमेंट है, छोटा मोटा गवर्नमेंट भी नहीं जो हमना अच्छा ले हमना मान लेना एक छोटा मोटा गवर्नमेंट का अकेले को कर लेने भी नहीं, हमारे जैसा एक बड़ा मजबूत गवर्नमेंट है जी उनके पास है, उन्हें उसका जो मलिका है वो औरत है उसकी हुकूमत करती है, वो बड़ा गवर्नमेंट छोटा मोटा गवर्नमेंट नहीं, वो लगा पूरे क्या करते हैं मालूम, वो गवर्नमेंट वाले वो मलिका भी और वो रियासत वाले पूरे भी अल्लाह को छोड़कर सूरज को इबादत करते हैं, सूरज की सजदा करते हैं, लेकिन तुमना पता भी नहीं है, तुमना मालूम भी नहीं, इतना बड़ा छोटा मोटा गवर्नमेंट भी नहीं और उसका तख्त भी मामूल तख्त नहीं, उस टाइम को जो बादशाहत लोग रहते हैं उनका तख्त मामूल तख्त नहीं रहता, सो मलिका के सबा का भी मामूल तख्त नहीं उसका, जिसका नाम है बिल्किस नाम उसका, वो मलिका का नाम बिल्किस उसका नाम है, उसका तख्त मामूल तख्त भी नहीं, हाँ ये तुमने मालूम भी नहीं, इतने लोग पूरे अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं, तुमने मालूम भी नहीं को बोल के बोलता खुद। जब ये सुनने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते, अबे फौरन या सुलेमान अलैहिस्सलाम माने नहीं, इसकी बात है हुदूद का बात है, क्या तो झूठ भी बोल सकता ना हुदूद है, और ऐसे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले मालूम, मैं तू बोला को बोल को मैं तेरी बात सुन को मैं तस्लीम कर लेता हूं, मैं देखता हूं तू सही बोलता है कि झूठ बोलता है कि मैं तहकीक करता हूं, रिसर्च करता हूं मैं को बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम में एक लेटर लिखते, खत लिखो, जा ये लेको जाको वो मलिका सबा को बिल्किस को देखो जाको बोल को बोलते, ये बिल्किस ये हुदूद जाको बिल्किस को दे डालता, खते को दे डालता, अब वो खते वो मलिका बिल्किस ओकुंदर को पढ़ती, उसमें क्या को रहता, सबसे पहले ये खते सुलेमान की तरफ से है, दूसरी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है तक ये खते सुलेमान की तरफ से है, दूसरा पॉइंट है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और तीसरी पॉइंट क्या बोले मालूम, फर्स्ट पॉइंट है ये खत किसके तरफ से आया, सुलेमान की तरफ से आया, दूसरा पॉइंट है तौहीद की दावत दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो अल्लाह है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, इसमें क्या बोल डाले सुलेमान अलैहिस्सलाम है, दीन का दावत दे डाले सुलेमान अलैहिस्सलाम है, क्या को बोल गए अल्लाह बड़ा रहमान है रहीम है, उसकी हुकूमत है पूरी दुनिया में गालिब रहने का चलने का को बोल को दीन की दावत दे डाले। तीसरी पॉइंट क्या देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, तो सरकशी मत कर फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जा, मुसलमान बनकर मेरे पास आ जा को बोल को बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम, धमकी में बोलते हैं, धमकी देते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम में, क्या को बोलकर सरकशी मत कर, कहते क्या सरकशी कहते क्या मेरी बात नहीं माने सरकार इन कौन होता मुझे ऐसा बोलता है सरकशी मत कर को बोल को डोरू मेरे में आना न को आई सरकार बच्चों में मैं बोले ना सुनकर इस्लाम कबूल करके मेरे पास आ जाओ को बोल को बोलते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा कहीं को बोलते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम में, पावरफुल नहीं है तो एक बड़ा एक बादशाह में है मलिका को ऐसा सख्त लहजे में कौन भी बात करता नहीं, या सुलेमान अलैहिस्सलाम में बहुत अफजल है, इनासी पावरफुल कौन भी नहीं होने से सुलेमान अलैहिस्सलाम वैसा बात करते हैं, सामने वाली भी एक मलिका होने से बात करने का अंदाज ऐसा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब उसके बाद वो खत पढ़ने के बाद अपने दरबारों को बुलाई, मलिका सबा अपनी दरबारों को बुलाई, सबको बुला को जो बड़े बड़े लोग रहते बड़े बड़े होदों में वो लगा को सबको बुला को बोली, अरे ऐसा खत पूरा पढ़ी, ऐसा सुलेमान की तरफ से मुझे खत आया, ऐसा हुआ, क्या करेंगे बोलो, मशवरा करेंगे, तुम्हें क्या बोले तो ओछे को बोल को बोलती, वो लगा के फौज के आर्मी बोलते कि अगर तू हुक्म दी तो हमें लड़ने से पीछे नहीं हटते, जंग करते, तू हुक्म दी तो लड़ने में हमें पीछे नहीं हटते, तू हुक्म दी तो, लेकिन तेरा फैसला क्या कि तू बोल, फैसला असल है तो तू करना, हमारा राय तो ये को बोल को लगा बोल रहा थे। या मलिका है बिल्किस है जो मलिका सबा है, इन्हें कितना जहीन की मालूमत है, देखो इन्हें फौरन ये खत पढ़ने के बाद ये डर जाओ को चल गई तो बड़ी बेवकूफी ने
कहीं के तो खत लिखने वाला कैसा वाला भी हो सकता, पहले तहकीक करना उन सही भी वैसा वाला है नहीं को बोल को। अब इसमें इन क्या करी मालूम, हमें ऐसा नहीं डायरेक्ट हमें जमकू उतरते भी नहीं, दूसरी बात है डायरेक्ट हमें इन बोला को बोल को चल जाते भी नहीं। असल में रिसर्च करती हूँ, तहकीक करती हूँ मैं, इसका क्या बनेगा। इन्हें अल्लाह के नाम से मुझे दावत दिया ना, दीन की दावत है। अब ये इन्हें मेरे कंट्री को जो मेरा है ये पूरा बादशाह को छीन लेना को समझता है, कब्जा करना को समझता है, नहीं तो सही भी अल्लाह के दीन को गालिब करने के वास्ते दुनिया में ऐसा बोला इन्हें। मैं तहकीक करती हूँ बोल को बोलती इन्हें मलिका। अब तहकीक करने से क्या बोलती करते तो उसके दरबार में है सो, अबे मलिका एक बादशाह तुम भी, मलिका बोले तो माहौल बात क्या, उसके पास एक मजबूत गवर्नमेंट है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, हम उसको हर तरह के वसाइल दिए बोल को बोलता है अल्लाह ताला। वैसा तुमको कितने तोहफा भेजती बोल को बोलती। अबे बादशाह लोग तोहफा भेजे तो कितना कीमती तोहफे रखो रहते, हीरे जवारियत सोना चांदी रखो भेजती। इन्हें अगर कब्जा करना को बोल को समझा तो ये पैसे के वास्ते, ये हीरे के वास्ते, सोना चांदी के वास्ते है, तो इन्हें ये देखने के बाद पीछे हट जाता। हटा नहीं करते तो माने उन हक के रास्ते के ऊपर है ना दे, सीधा रास्ते के ऊपर है ना दे, हमें ऐसा वाले से जंग लड़े जाने को बोलती। अब एक आदमी को देखो हीरे जवारियत उस टाइम को क्या क्या है तो कीमती चीजें रहती कि वो देखो भिजाती, एक उसे देखो उन्हें आता उन्हें आगो सुलेमान अलैहिस्सलाम के को ये पेश करता, ये मलिका भिजाई को बोल को। सुलेमान अलैहिस्सलाम को फौरन गुस्सा आया था। गुस्सा को सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलती है, चंद टके के लोग हैं, तुम्हें क्या समझते हैं मैं तुम्हें दीन की दावत दी हूं, तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हें ये माल दौलत के जरिए ऐसी मेरी मदद करना समझते हैं क्या तुम्हें लगा। अल्लाह ताला जो मुझे दिया है इससे कई गुना बेहतर अल्लाह मुझे दिया है, मुझे तुम्हारी माल की जरूरत नहीं है, वापस चले जा। वो कौन है तो लेको आए, कुछ बोलता है ये लेको वापस चले जा तू। अब एक बार मैं खत नहीं भेजाता हूं, लेटर नहीं भेजाता हूं, मैं ऐसी फौज को लेकर आता हूं जिसके सामने खड़ना मुमकिन ही नहीं। मेरे सामने ऐसी फौज लेकर आता हूं, मैं वो फौज के सामने कौन भी खड़ सकता भी नहीं, कौन भी लड़ सकता नहीं, जा वापस चले जा को बोल के बोलते सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब वो उन चले जाता, वो कासिद पीछे चले जाता, वापस चले जाओ को बोलता ऐसे ऐसा को बोल को। जब उन मलिका बिल्किस से मशवरा करती, अब हमें ऐसा वाले से जंग लड़ना मुनासिब नहीं, अगर ऐसा लड़े करते तो उन हक के रास्ते पे वैसे वाले से हमें लड़े जाने। अब 50-50 चांसेस है इधर जीतने के हारने के, दो तरफ भी 50-50 चांसेस। अगर हमें जीते तो ओके, अगर हमें हार गए तो माने उन्हें हम मुझे भी मलिका में एक पूरा गवर्नमेंट की हुक्मरान में मुझे भी इन्हें गुलाम बना डालता, तुम ना लगा तो भी गुलाम बना डालता। होने से उन हक के रास्ते में है, एक बार असल क्या करने का सुनेंगे, इस्लाम कबूल करना नहीं, क्या हो असल बुलाया क्या हो, बात क्या हो कि पूछेंगे वो बोल को बोलती। अच्छा वो बोल को वासी इधर सफर शुरू करवाती उन्हें मलिका बिल्किस से, इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम का कने गाने। अब वह सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम होता उन शुरू हुआ उसका सफर को। अब यह देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अब एक मौजिजा कर को बताना को बोल को फिक्स हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मौजिजा कर को बताना इन आने से पहले को। इन कहा रहती सुने, यमन में रहती सुने, सुलेमान अलैहिस्सलाम रहते सो कहा फलस्तीन में। ये फासला कितना के तो 2000 किलोमीटर तकरीबन फासला, उस जमाने में आना के तो कितने महीने लगते सो, वहां से 2000 किलोमीटर आना के तो उस जमानों में आना के तो 2000 किलोमीटर तकरीबन वो रास्ता यमन से फलस्तीन आना के तो। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे दरबार में सबको जमा कर को मखलूक को, भाई बोलो तुम्हारे में कौन सा मखलूक ऐसा है वो मलिका सबा आने से पहले पहले उसका जो तख्त है वो मेरे सामने लाना। कौन लाते बोलो को बोल को बोलते सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसमें एक जिन्नात रहता, वो जिन्नात उठ को बोलता कि ए सुलेमान तुम्हें हुक्म दिया मुझे, तुम्हें यहां से उठने से पहले पहले तुम्हारा तख्त उसका तख्त में लेकर आकर रखता हूं तुम्हारे सामने को बोल को बोलता एक जिन्नात। फौरन वहां एक जानवर रहते, कौन वो आम इंसान है नेक, लेकिन नेक बुजुर्ग होना जिसके पास कुरान में अल्लाह ताला बोलता है जिसके पास हमने हमारी किताब का इल्म दिया। उस टाइम को किताब कौन सा है, जबूर, दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला सो किताब कौन सा, जबूर है। जबूर का इल्म जिसके पास है वो नेक है। बुजुर्ग बोलते हैं कि ए सुलेमान, ये जिन्नात बोलता है कि तुम्हें उठने से पहले को बोलता है ना, तुम्हें तुम्हारा पलक है झपटने से पहले पहले तुम्हारे सामने मैं ला कर रखता हूं को बोल को बोले कि नहीं कि ला कर रख डाले। अब ये हंकी मुझ को खोलने में कितना खुद लगता बोलो, ये पलक झपकने से पहले पहले मैं वो तख्त लेकर आकर रखता हूं तुम्हारे सामने को बोल को बोले कि नहीं कि फौरन वो तख्त लाकर रख डालती। तो बुजुर्ग ये करामत है, बुजुर्ग के हाथों के ऊपर अल्लाह ताला करे, कई को करे
जिसके पास किताब का इल्म है वो बोल को स्पेशल होने कुरान में अल्लाह बोला, जिसके पास हमने हमारे किताब का इल्म दिया। इससे क्या मालूम होता है, अल्लाह का किताब का इल्म रहना बहुत बड़ी दौलत है, पूरी दौलत है। ये पूरा माल दौलत जो दुनिया की दौलत है, जो अल्लाह की किताब का इल्म के सामने जर्रा बराबर भी नहीं है। वो ये सबसे अफजल अल्लाह की किताब का इल्म रहना, जो आज हमारा कुरान मजीद का इल्म हम किसी के पास रहे तो उससे ज्यादा कोई भी नहीं दौलतमंद है। ये इल्म अल्लाह ताला खास तौर पर बयान करे कुरान में, जिसके पास हमारा किताब का इल्म है। अब इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम कम नहीं होते। अब वो क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं कर सके, वह एक मामूल इंसान है, मामूल एक बुजुर्ग है, उना खातम पे करामत ही करते, तो इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचा नहीं होते, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम से अफजल वो बुजुर्ग नहीं होते। क्योंकि उलमा बयान करते हैं कि उम्मती हाथों के ऊपर मोजिजे करामतें होना, ये कामा नबी के ऊपर हुए तो नबी के हाथों पे हुए तो उसे मोजिजा कहते, वो चाहे आम इंसानों के हाथों में हुए तो उसे करामतें कहते। अब ये करामतें उनका खासियत क्या भी नहीं, उन्हें तोप क्या भी नहीं उसमें बुजुर्ग है, लेकिन ये कैसा उन्हें को मिला करते, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के वजह से उन्हें को मिला। नहीं कहते उन्हें कर सकते नहीं, सो आज भी होता चाहिए इस उम्मत में बड़े बड़े बुजुर्गों के हाथों पे करामतें होते गए, तो वो ये लगा हमारे नबी से अफजल को बोल को नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से अल्लाह ताला ये ऐसा लोगों के हाथों के ऊपर एक करामतें कराता है अल्लाह ताला। इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम का कम नहीं होता, इनकी इज्जत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और बढ़ जाती, इनकी अफजलियत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। ऐसी इना की उम्मत के हाथों के ऊपर ऐसा मौजूदा करा, फौरन क्या बोले मालूम, वो तख्त लाने की फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले मालूम, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरा रब का मेरे ऊपर फजल है, मेरा अल्लाह मुझे आजमाता है, मुझे टेस्ट करता है अल्लाह ताला, मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूं या ना शुक्र बनता हूं। कोई अगर शुक्र करता है तो अपना फायदे सींचे, अपना खुद अपने को ही फायदा लगता है शुक्र करने से, अगर नाशुक्र बनता है तो मेरा अल्लाह करीम है, इज्जतदार है, उसे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता इसकी नाशुक्री सी को बोलते। कौन बोलते बात, सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते। अब महीनों का सफर बाद उन्हें मलिका बिल्किस आई और मलिका सबा आ गई दरबार में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आएगा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले मालूम, वो तख्त को इन आने से पहले ये तख्त को सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या बोले करते, तो इसका डिजाइन जरा बदला डालो, डायरेक्ट वैसा छह जानी, जरा इसे कंफ्यूजन में डालना, इसका डिजाइन बदला लो को बोलते, वो डिजाइन बदला डालते वो तख्त का। उन आने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे मलिका सबा को बोलते, ये तख्त का तुम्हारा क्या को बोल को पूछते सुलेमान अलैहिस्सलाम। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ने पूछने को क्वेश्चन है सुलेमान अलैहिस्सलाम। मलिका बिल्किस बोलती कि देखो अच्छा गौर कर को, देखने में वैसा लगता है लेकिन मैं वहां छोड़ कर ना, इतना लंबा सफर में आना है तो मामूल बात नहीं, हमें पहले निकले, हमारे से पहले कैसा आता है तख्त, दिखने में ऐसा लगता है क्या, तो डिजाइन बदला है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अब इसी से मालूम हो गया अल्लाह तुमने जो वसाइल दिया है वो इस वसाइल के बारे में, मैं इतना बड़ा तुमने वसाइल देता वो बोल अल्लाह मैं समझू नहीं, लेकिन ये देखने के बाद मुझे मालूम हो अल्लाह ताला तुमने कितना वसाइल दिया कि वो बोलती उन्हें। अब इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते कि आ जाओ महल के अंदर दाखिल हो जाओ, वो बोल के बोलते सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब जो वो महल है वो महल है जिन्नातों के जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए। कैसा महल करते, तो या ऊपर हमें मार्बुला टाइल सा डालते ना नीचे ऊपर, वो टाइम पर सुलेमान अलैहिस्सलाम में शीशा नीचे पानी जाता सो उसमें मच्छा फिरते सो, पानी मच्छा फिरना, उसके ऊपर आईना चढ़ाना। वो टाइम पर टेक्नोलॉजी देखो, वो टाइम पर कैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों के जरिए से देखो, वो टाइम पर नामुमकिन ऐसा करना, ऐसी टेक्नोलॉजी बरतना नामुमकिन असले, वैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते। अब उनसे अंदर आओ के स्टम्प इन्हें महल में दाखिल होते स्टम्प जो भी उसका लिबास होता है वो लिबास के ही सब पर उठा लेती, भिग जाता वो बोल को, पानी है तो बोल को। जब उन पान डाले वस्तुओं से मालूम होता, शर्मिंदा हो जाती है, ये तो पानी नहीं है भाई, ये तो इसके ऊपर है फर्श भिजा है, फर्श कैसा कहने का फर्श भिजा है वो बोल को। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते कि ये भिगता क्या भी नहीं, इसके ऊपर में फर्श भिजा है आईना का जैसा, पत्ता को बोल को बोलते। जब इसे मालूम हो जाता, हदी मालूम होता, ये मामूल वाले नहीं, इन्होंने नबी सच्चे नबी, इन्होंने अल्लाह के नबी को बोल के उसे मालूम होता कौन क्या बोलती मालूम। सबसे पहली बात उन बोलने का, मैं आज तक मेरे जान के ऊपर जुल्म करी, या अल्लाह मुझे माफ कर डाल, मैं अब तौबा करती हूँ, आज के बाद मैं तेरे साथ दूसरे किसी को भी शरीक नहीं करती। उन क्या करती सो, इससे पहले सूरज की इबादत करती सो, सूरज को पूजा करती सो, सूरज को सजदा करती सो, मैं मेरे जान के ऊपर मैं जुल्म कर रही हूँ, नहीं मैं दिल को बाद में नहीं करती हूँ बोल को फौरन बोलती कि
मैं सुलेमान का जो रब है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो रब है, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाती हूं है जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, पालने वाला है, ऐसी रब के ऊपर मैं ईमान लाती हूं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसमें मैं भी शामिल हो जाती हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात में मैं भी शामिल हो जाती हूँ को बोलकर इस्लाम कबूल कर डाली मलिका बिल्किस। ऐसा इसका इस्लाम लाने का वाक्य अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करा। इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, इनकी फजीलत के बारे में मालूम था। एक तरफ है मलिका बिल्किस को रखो और एक तरफ है फिरौन को रखो। फिरौन के पास भी माल दौलत है, मलिका बिल्किस के पास भी माल दौलत है, हुकूमत है पूरा। या देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम खाली एक लेटर लिखे, वो लेटर भी धमकी में, धमकी लेटर, मौल लेटर भी नहीं, सरकशी मत कर, मेरी फरमाया बरदारी बंद करा, इस्लाम कबूल कर को बोल को धमकी में बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम। वहां मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को क्या बोले, फिरौन को कैसे दावत दिलाया अल्लाह ताला, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या बोला, सख्ती से मत बोलना, उसे आहिस्ता नरम अंदाज से बोलना, शायद वो नसीहत हासिल कर ले। वो देखो कैसे कैसे मौजज़े करके बताया मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों के ऊपर है। क्या होना कि लाठी सांप को बना कर दे डाला, क्या वो जादूगरा से मुकाबला करके दिखाया अल्लाह ताला, क्या समुद्र में रास्ता खोल कर दिखाया। इतने देखने के बावजूद भी वो फिरौन गाड़े जर्रा भी उसको समझ में नहीं है। लेकिन यहां मलिका बिल्किस है, खाली रास्ते में छोटे छोटे मौजज़े, अल्लाह के मौजज़े बताने से इन्हें अल्लाह की कुदरत को जान ली और जो गुनाह करती रही उससे तौबा कर ली, फौरन रुजू कर ले तो अल्लाह की इबादत में आ गई इन्हें। इसमें दोनों के मेंटल अप्रोच में देखो कितना फर्क है कि दोनों के पास एक ही है, लेकिन जो असल वाला है, जो मुझे असल दीन में रहना, मैं सच्चा दीन के ऊपर मैं चलना को बोल को कौन है तो समझते कि उसे अल्लाह ताला तब भी रास्ता करेक्ट बताता। अगर हमारे दिलों में है तो हमें करेक्ट दीन के ऊपर चलना को बोल है तो आज भी हमना भी ऐसा है, अल्लाह सीधा रास्ता हमने हमेशा दिखाता। और आखिरी बात करके इंशाल्लाह मैं बयान खत्म करूंगा सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और एक दिलचस्प वाक्य एक है, आखिरी वाक्य। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इतना हुकूमत है नैना के पास है, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मैं तेरी पूरी मखलूक को खाना खिलाना कर लेता हूं, मैं मुझे इजाजत देगो बोल। अल्लाह बोलते नहीं नहीं नहीं, तू खिला सकता नहीं सुलेमान, तू खिला सकता नहीं, तेरे से होता नहीं, ये मेरे से छोड़ेगा। नहीं अल्लाह, नहीं अल्लाह को बोल को जिद करते, अच्छा जिद करते हैं ना को बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत दे डालते अल्लाह, अच्छा जाओ बोल को। सुलेमान अलैहिस्सलाम में पूरे जिन्नाता को, पूरे मखलूक को जमा कर को सबको मैं एक दावत देता हूँ बोल को, कितने महीने से खाना तैयार करना शुरू करते। कितना पहाड़ कितना ऊंचा रहता बोलो, उतना बड़ा ऊंचे ऊंचे देगा चढ़ाना, और अंदर चौड़ापन कितना मालूम, एक बड़ा समुद्र कितना चौड़ापन रहते, उतने चौड़े देख कैसा तैयार हुआ करते। तो जिन्नाता जरिए से कराते सो कई को कहते तो तांबा का एक नहरीचा अलग से अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया ना, उसी अलग के हाथ में कराते सो, और वो खाना खराब हो जाता सो ना, फिर महीने महीने करे को बोल के बोलो ये खाना, फिर वो खाना खराब हो जाता सो ना। इनाखात में हवे एक मौजूदा है, हवे का मौजूदा, हवे को हुक्म देते तू इसे करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर रखना, ये खाना खराब हुए जानी, उतर गई जानी, बास होने नहीं जाना, ये खाना उतर गई जानी, करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर रखना, वो बोल को हवे को हुक्म देते। वो हवा इनके हुक्म के ताबे करता ना, वैसा करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर रखो ये होता। अल्लाह क्या करता करके तो एक मछली को भी जाता भाई, पूरे सबको दावत को बोल को बोला थे सुलेमान अलैहिस्सलाम में, पूरे मखलूक को, जिन्नाता को, इंसान को, हर एक किस्म के जानवरों को, समुद्र में से मखलूक को, सबको मेरे तरफ से दावत को बोला थे, सब भी तैयार हो जाता। अब उसमें से एक मच्छी आती भाई, एक मच्छी आको सुलेमान अलैहिस्सलाम से आको मुझे भूख लगती है, मुझे खाना डालो को, ठीक है सब भी आते हैं, सब भी आएगा तो सबके साथ मिलकर खाती की बोल बोल, नहीं 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 मुझे बहुत भूख लगता है, मैं संभाल सकता हूँ, मुझे दाल पहले खाना को बोल, अच्छा ले वो बोल को सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते, अच्छा इसे खाना डालो वो बोल को बोलते। डालने की जरूरत भी नहीं, जो पूरी मखलूक के वास्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए थे ना, कितने बड़े बड़े देगा वैसे कितने बनाए कि अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने, वो पूरा एक ही बार, एक ही निवाले में एक ही बार निकल जाती मच्छी, एक ही मच्छी। बाद में बोलती कि वो मच्छी इतना निकल जाको एक ही बार में, मेरा पेट भरा नहीं, अभी होना मुझे को बोल के बोलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ जाता, मैं पूरा मखलूक के वास्ते बनाया तो ये जनी पूरा एक ही दम अंदर डाल ले को, अभी पेट भरा नहीं करती क्या वक्त है। तो ए सुलेमान, ऐसा का लुकमा मेरा अल्लाह मुझे 3 टाइम खिलाता है, तू एक बार खड़ा है, मुझे नाश्ता से जस्ट इससे ज्यादा अल्लाह ताला मुझे 3 बार, इससे डबल गुना मुझे अल्लाह ताला खिलाता है मुझे वो बोल बोलती। इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया
अम्मो मेरे से होता नहीं। अल्लाह चुप को कौन भी मखलूक को खाना खिलाने वाले लायक नहीं है, असल रिस्क देने वाला अल्लाह। मैं इतना कर को भी मेरे से नहीं होता वो बोल के ना मालूम हो जाओ फौरन सजदे में पड़ जाओ, अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह मेरे से गलती होगी माफ कर दे अल्लाह, मैं फिर को आइंदा ऐसा तुझसे सवाल नहीं करता, मेरे से सवाल है मुझे माफ कर बोलते, अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाता। और इससे क्या मालूम होता है असल रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह रिस्क देता। अगर हमें हलाल के ऊपर चल को हम ना हलाल रिस्क होना समझे तो मुश्किलात आते, मुश्किलात के बगैर अल्लाह रिस्क देता नहीं। हराम है जल्दी हासिल होता, कई क्यों कहते वो हराम है, हराम हलाल मिलना कहते तो मुश्किल है, मुश्किलात से हम ना सामना करे तो अल्लाह हमने हलाल खाना दे डालता जिसमें बरकत ज्यादा रहता। हराम में बरकत खत्म हो जाती हमारे घरों में, हलाल में बरकत ज्यादा रहता। मुश्किलात करने के बाद उसका मेहनत कितना है तो हमें पड़ेगी, उसका बदला हम अच्छा देता अल्लाह ताला। होने से असल रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। किसी से भी कुछ भी नहीं होता। अब इनका सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का वाकया, आखिरी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का वाकया भी बहुत अजीब वाकया। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बारी ये क्या वो हैकले सुलेमानिया करा डाले जी, हैकले सुलेमानिया कहते क्या हो तो ऊपर बोला तो है सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बनाना कर ले, एक मस्जिद है सेपरेट होने में इबादत कर लेने का उसे हैकले सुलेमानिया कहते। वो जेरूसलम में है, मस्जिद उल अक्सा के करीब है, वो अब नहीं है, अब खत्म हो गया, उसे खाली एक दीवार है वो तचवा पूरा खत्म हो गया वो। अब वो ऐसा इमारत करते रहते ना, जिन्नाता को हुक्म देते एक इमारत बनाओ, इमारत बनाते रहते, अल्लाह इना का मौत का फैसला कर लेता, इस मौत का फैसला कर लेता, मलकुल मौत आता रूह निकाल होता सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कैसी हालत है? सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी रहता, लकड़ी के ऊपर हाथ ऐसा रखो रहते, ये हाथ के ऊपर सिरे से रखो रहता सुलेमान अलैहिस्सलाम का, मर जाओ रहते। वो टाइम पे जिन्नाता का बहुत ज्यादा असर है ना, लोग समझते सो कि गैब का इल्म जिन्नाता का नहीं है को बोल समझते सो लोग। अल्लाह ताला ये लगा को बताना समझा सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए से, गैब का इल्म मेरे पास चुका अभी किसके पास भी नहीं है को बोल को। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत होगी, किसी भी मान ली ये जिन्नाता सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिक्को डरते सोना, सुलेमान अलैहिस्सलाम वैसा छेड़ा को बोल के लगा, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, इमारत करते रहे, क्या बनाते रहे, दीवारें करते रहे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का किसी भी मालूम नहीं, कितने महीने गुजर गए। बाद में एक दीमक है जो चदल का कीड़ा बोलते दीमक, वो चदल का कीड़ा वो लकड़ी को खा लिया, लकड़ी को खा लेने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर जाते, लकड़ी को खा लिया। जब मालूम हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल हो गए होगा, इससे अल्लाह ताला लोगों को बता डाला जिन्नाता के पास गैब का इल्म नहीं है को बोल, गैब का इल्म रहा तो ये लगा डर को रहते सो ऐसा कब है तो पड़ गया कि जब मालूम अल्लाह इन मर गया रे हम मालूम नहीं, हम इसे डर को ये काम करते हैं को बोल जिन्नाता को मालूम। और इना का वाकया सी गैब का इल्म का बोर में बोले अल्लाह ताला, गैब का इल्म मेरे पास चुका अभी किसके पास भी नहीं को बोल को। और अल्लाह ताला इतने बादशाह दिया, अल्लाह ताला को सा भी देने में एक सेकंड पकड़ता नहीं, छीनने में भी एक सेकंड पकड़ता नहीं। अब यह सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का वाकया भी है, दिया एक सेकंड में दिया, छीन लेना भी कैसा एक सेकंड में छीन लिया। आज हमारे पास भी होता है माल दौलत आज आया करते तो फकर नहीं करना, हमें इसमें जरूरी नहीं करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसा है तो शुक्र करे कि वैसा हमें शुक्र करे तो हमारी नेमतों में इजाफा कर डालता, अभी बढ़ा था अल्लाह ताला ना, वो ना शुक्री करे तो हमारा खुद का नुकसान होता। और इना की मौत के बाद ये शैतान एक है हारुत मारुत को अल्लाह ताला इना से पहले जमाने में दो फरिश्ते रहते हारुत मारुत को, ये दोनों कुतार को जादू के बारे में और मोजिजात के बारे में लोग फर्क मालूम होता नहीं है लोगों को, कौन सा जादू की कोट का नबी का मोजिजा की नहीं मालूम होता है, तो फर्क मालूम होने का वास्ते हारुत मारुत को दो फरिश्ते, ये दो फरिश्ते को उतारे अल्लाह, उतार को लोगों को सिखाया, क्या को सिखाए अल्लाह ताला, ये जादू है तो मालूम हो जाता तुमना, कौन सा की इल्म सिखाई बा वो इल्म से लगा को मालूम हो जाता, कौन सा जादू की कौन सा मोजिजा की। अब अल्लाह ताला इसी का इस्तेमाल फरिश्तों के जरिए से बोला, इसे गलत इस्तेमाल करे तो माने तुम्हें अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देता, आखिरत में तुम्हारा लेना देना क्या भी नहीं को बोलते। अब वैसा लगा को सिखा डालते हो, अब ऐसा बढ़ते बढ़ते करते तो ये लगा क्या करते अल्लाह की नाफरमानी कर डालते, वो सिक्को जादू करना शुरू कर डालते लगा। कैसी जादू? पहले ज्यादा फोकस होगा किसके ऊपर करते तो मर्द जोरू के बीच में लड़ा लगा को छुड़ा डालते सो लगा। अब ये होने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज्यादा हुआ को बोल को, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो इल्म है ना वो किताबा खींच लेते अपने तख्त के नीचे रख लेते वो इल्म को खत्म कर रहा को समझते। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के बाद एक शैतान आता आपको बोलता ये पूरा जिन्नाता का कंट्रोल सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसा करते से मालूम हो, वहां देखो एक बार जाको सुलेमान के तख्त के नीचे किताबा है उसमें जादू है, वो जादू सिक्को सुलेमान अलैहिस्सलाम करते सो, होने से इना को जिन्नाता इना को हुक्म करते सो को बोलते सो। अब उसके बाद ये लोग बेवकूफ आना जल्दी मान गए लोग, उसमें आ जाको किताब वाले को फिर को शुरू करना हो गया। लेकिन हकीकत में क्या अल्लाह मौजूदा के तौर पर ही ना दिया, वो खत्म करना को बोल समझा। इससे क्या मालूम होता है जादू का असर, लेकिन वो असर किसके ऊपर होता जो उसके ऊपर पड़े रहते हर बार, उसमें जो जिन्ना था उसमें रहे सुना को ब्रिज होता, जो अल्लाह की इबादत कर को अल्लाह की इसमें रहे सुना को
क्या भी असर नहीं होता। कई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, सूर्य नास, सूर्य फलक, आयतुल कुर्सी, या चारों कुल मिला को पढ़े तो तुम्हारे ऊपर क्या भी असर नहीं होता, वो बोल को बोले। इससे क्या मालूम होता है कौन है, तो अल्लाह से हमारा कनेक्शन अच्छा रहा तो ये जिन्नात क्या, ये जादू टोने क्या भी हम ना कुछ भी क्या भी कर सकते नहीं को बोलकर इस वाक्य से हमें एक मालूम हुआ। ये पूरा सुलेमान अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक्य। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अब जो बात हमारे सामने आई है इसमें अगर मुझे बोलने में गलत हो गए तो अल्लाह ताला इसे इन गलतियों को माफ फरमाए और हम सबको कहने से सुनने से ज्यादा इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला के बहुत सारे नेक बंदे हैं, उसमें ही अल्लाह ताला हमको भी उनके नेक बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला हमको उसकी शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।